गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। ओ। आंटी की तबीयत कैसी है? बताएंगे। ओके। कब तक आएंगे लोग, भगवान जाने। हम्म। कब तक आएंगे लोग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रमेश जी। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। ऋषभ, आपने पोस्टर देखा वो वाला? हाँ, काम सेलिंग ना। काउंट्स काउंट्स सेलिंग। काउंट सेलिंग। हाँ, वो गलत थोड़ा स्पेलिंग है। सीलिंग नहीं बने आप, वही बहुत था। हाँ। सीलिंग नहीं बने आप, काउंसिलिंग बन जाते तो अच्छा था। हाँ, मैंने कहा कि ये काउंट सेलिंग कहाँ से आ गया। ये तो पहले लगेगा गंवार साइकोलॉजिस्ट है। बोलेगा पहले सीख के आओ, स्पेलिंग सीख के आओ, फिर बात करना, काउंसलिंग पे बाद में बात आप करेंगे। चैट जीपीटी को जाकर प्रॉम्प्ट दे दीजिए ना, वो उसका फोटो अपलोड कीजिए, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दीजिए, वो ठीक हो वही जाएगा। करेंगे, वही करेंगे हम। बाकी मैंने भेजा है और लोगों को भी। हम्म। मेरे तो खुद के पर्सनल सेशन ज्यादा महंगे है, कोर्स सस्ता है। तो कोर्स पे ही मतलब जिसमें जो लेना चाहे, हम तो बोले ही थे कि जो भी लेना चाहे आप बस डाल दो। हाँ, मैं डाल दूंगा, आप एक बार ठीक करके मेरे को भी भेज दीजिएगा। ठीक है, आज करते हैं। गुड मॉर्निंग राम जी। आई नीड योर हेल्प। Hello, are you? गुड Hello, इवनिंग, गुड मॉर्निंग। yeah, can you hear me? You talk with me? एक्चुअली Uh,
ST? Actually, I have a ligament tear issue in my Okay. right ankle for last Okay. 3 months, Okay. and still sometimes I feel pain and swelling. Okay. What kind of stretches I can do for that? So now also, so when do you have the pain? How frequent it is? It's like uh, I can't say exactly, but once in a day it Once happens. in a day. So how intense is the pain? Is it if I say 0 to 10 pain score and 0 is no pain, 10 is severe pain and 5 is moderate pain, how much do you score? 5, 6, 8 increases, keep increasing. So Five to if eight, I the guess. 5 Five to to 8. eight. So it is when, do you notice when you sit down or at that time? No, whenever I walk or stand in kitchen for a long time, for 1 hour or something, then Okay, okay. So have you been to physiotherapy treatment before? mm, little bit. Little For bit, 10 right? days, I think. Sorry, for 10 days? For 10 days, yes. It was initially, is it? No, not initially. After 2 months, I think. After. Okay, okay. So what I suggest you in case of this kind of ligament pain, if you go physiotherapy clinic, give ultrasound treatment. Just 10 minutes is they give ultrasound over the ligament area. So just for 8 minutes or 10 minutes like that, they give for 5 sessions. It will get cured. For my left ankle, they did, and it was very effective. But for I don't know why. If for right ankle, Uh, for left ankle, it happened in 2013 or 14, I guess. But for right ankle, recently it happened, and even I said them, I need you ultrasound treatment, but they didn't care. I don't know why, but they only did stretches and all, and not ultrasound treatment. So you have already given ultrasound, is it? No, No, not yet. But no. actually, it works a lot. But at that time, when giving ultrasound, you need to keep it protected, supported with a crab bandage, Okay. or the ankle socks you wear. So just 2 weeks or something, you will completely get cured out of it. Okay. Actually, I'm wearing ankle support. Actually, I'm Okay, wearing. Still, okay. sometimes I feel pain. Uh, So actually, the ultrasound, what it helps is it helps heal the ligament. If any small tear also, it completely heals it. And after okay. that, you have the support, it will be more useful. Okay. Okay. For Yeah, 10 it days, you said, na? 5 sessions will be fine 5 sessions. Okay. because your pain, it seems very less only. It's like one Yes. time a day, It's in right? recovery mode. Yep. Yeah, yeah. Then 5 sessions, not more than 5 sessions. Okay. So Thank you. for 3 sessions itself, it get cured. Okay. Okay. Yeah, you can try that, and maybe after that you can do all the exercises, stretching exercises. Then I can send you all. Okay. Okay. Thank Okay, you. okay. Welcome, Divyaji. Okay, let's start our session. Oh, battery is low. Good morning, everyone. Shall we start the session? Yes, sir. Yes. Okay. What's the topic that I uploaded?
that I mentioned for today? 1.4. 1.4. Okay. What's in 1.4? Techniques for stress management and emotional balance. Hmm. एंड जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, चीजें रिपीट होती रहेंगी। ठीक है। तो आपने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा ही है। पढ़ा आपने। तो आपको ये पता होगा कि अब इसी में कुछ एक नया एंगल मैं जोड़कर आपको दिखाता हूँ। होता क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? व्हाट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? इट रिस्पॉन्ड्स, but it gets stimulated when there is a threat around your surroundings, because it is fight or flight. Hmm? Fight or flight. So it gets stimulated when there is a threatening stimulus. And this is according to the modern science. Huh? What I am saying is according to the modern science. It means if there is a threatening situation, what happens? The size of amygdala reduces. Hmm? And what? Stress and anxiety increases. Stress hormone releases. The same thing is repeating here. So stress hormone increases, then what happens? The amygdala size decreases, stress hormone increases, then Stress and anxiety increases. okay. See, we have already read it, but we are also reading it again in a new way. एक अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। Cortisol increases. Yes, stress hormone. It is cortisol. Now let me tell you one thing. When you activate it on a continuous basis, what happens? When you activate your sympathetic nerve on a continuous basis, what happens? Logic part is like not dominant. That is there, but emotional part is also damaged, na? Yeah. So what happens? Why do we suffer from a lot of mood swings, anxiety issues, sleep disturbance issues? We Hmm. are emotionally dysregulated because this is too much stimulated on a regular basis. So, chronic stimulation or chronic activation of the sympathetic nervous system leads to anxiety, mood swings, sleep disturbances, and emotional dysregulation. पता चल गया कि मेडिटेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है।
तो आपको ये पता चल गया कि आपके 10,000 रुपये पानी में नहीं गए। नहीं तो कम से कम इतना तो पता चला होगा। वैसे ऐसे मेरा पर्सनल वाला ज्यादा महंगा है, पर यहाँ ग्रुप है ना, इसीलिए। पर्सनल वाले में साइकोलॉजिस्ट वाले चार्जेस लगते हैं, तो इसीलिए ये जो आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, ये मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, इट इज अ काउंसलिंग प्रोसेस एज वेल। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके। चलिए अब शुरू करते हैं कि मेडिटेशन किस नजरिए से देखता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी को, ठीक है। तो मेडिटेशन के हिसाब से स्ट्रेस का मतलब होता है चित्त विक्षेप। ठीक है। मेडिटेशन का मतलब, स्ट्रेस का मतलब होता है चित्त विक्षेप, यानी मेंटल डिस्टरबेंस। और इमोशनल इम्बैलेंस कैसे देखता है मेडिटेशन? जो हमारे अंदर इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं ना, वो हमारे चित्त की वृत्तियां ही है एक तरह से। तो ऐसे आप देखेंगे कि इमोशनल इम्बैलेंस जो है वो हमारे माइंड में हो रहे फ्लक्चुएशंस हैं। और ये माइंड में हो रहे फ्लक्चुएशंस क्यों हैं? राग द्वेष और अस्मिता के कारण। राग द्वेष मीन्स अटैचमेंट, अवर्शन एंड ईगो आइडेंटिफिकेशन। इसी के कारण सारे के सारे इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं। एक बार रिपीट करना आप। अटैचमेंट। अटैचमेंट, अवर्शन एंड ईगो आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज दिस ईगो आइडेंटिफिकेशन? अस्मिता। ईगो आइडेंटिफिकेशन मतलब जो चीजें हम करते हैं हम उसको अपना आइडेंटिटी का हिस्सा मान लेते हैं, हम अपनी मेमोरीज को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। बल्कि मेमोरीज तो हर क्षण बदल रही है, तो आइडेंटिटी भी हर क्षण बदल रही है। तो जिसको हम अपना परमानेंट सेल्फ मानते हैं वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो तो बहुत टेम्पररी है, वो तो क्षण क्षण में बदल रहा है। तो हमारा रियल सेल्फ तो वो विटनेस है जो इस ईगो को विटनेस कर रहा है, इन मेमोरीज को विटनेस कर रहा है, इन टेंडेंसीज को विटनेस कर रहा है। ठीक है। अब मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मतलब मेडिटेशन का गोल क्या होता है? मेडिटेशन का गोल, तो मेडिटेशन का मतलब तो मैंने बता दिया। गोल क्या होता है ऐसे सिचुएशन में? कि आपको सप्रेस नहीं करना है कुछ भी। जो इमोशंस है उसको सप्रेस तो करना ही नहीं है, क्या करना है फिर? अवेयरनेस, रेगुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। बिल्कुल, रिलीज। ट्रांसफॉर्मेशन में रिलीज अपने आप आ जाता है। अगर अवेयरनेस होगी
तो हम सप्रेस नहीं करेंगे, तब हम रेगुलेट करेंगे। मेडिटेशन तो सबसे पहले तो हमें ये अवेयर कराता है कि था क्या अंदर। अच्छा पता है, कई सारे लोगों को एहसास भी नहीं होता कि उनको स्ट्रेस है। कई से लोग ऐसे मानते भी नहीं है। उनसे आप बात करोगे ना, वो आपसे फोन करेंगे इस बात पर बात करने के लिए कि उनको बड़ा स्ट्रेस है, फिर कुछ देर बाद बोलेंगे नहीं मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं। होता है कि नहीं ऐसा? मतलब नहीं नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ। वो बोलते हैं ऐसा कि नहीं, मुझे स्ट्रेस है, फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे नहीं मुझे इस बात नहीं का नहीं बस स्ट्रेस है, बस इस बात फिर से स्ट्रेस फिर कुछ होती है, देर बाद स्ट्रेस नहीं। बोलेंगे मुझे स्ट्रेस नहीं है, नहीं नहीं हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद बस नहीं से कभी इनकार कभार आ कर। जाता है। हाँ, कभी कभी। ऐसा होता है हमारे आसपास, ऐसे लोग हो, उनमें अवेयरनेस ही नहीं है स्ट्रेस को लेकर के। तो स्ट्रेस की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इस अवेयरनेस के होने के बाद ही तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो सकते हैं, है ना? और ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू आते हैं? रेगुलेशन के थ्रू आते हैं। अब जो मेमोरी बन चुकी है उसको थोड़ी ना खत्म कर सकते हैं। बस उन्हीं मेमोरीज को अब अलग नजरिए से हम देख सकते हैं। और उन मेमोरीज को अलग नजरिए से देखना है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिवेट करना होगा। कोई भी इंसान चाहे बहुत सारा ज्ञान दे ले, सिंपैथेटिक नर्व अगर ओवर एक्टिवेटेड और पैरासिम्पैथेटिक नर्व अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो ज्ञान किसी काम का नहीं आता। इसीलिए मैं किसी को भी, जब मैं काउंसलिंग देता हूँ तो मैं पहले उसको थेरेपी देता हूँ फिर काउंसलिंग देता हूँ। थोड़ा उल्टा अप्रोच है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज वो समझने की स्थिति में नहीं है। आज वो जो कुछ भी बोलेगा, बेचैन आत्मा एक तो खुद को गलत समझता है, दूसरों को भी गलत समझता है, और अपने सिचुएशन की भी गलत इंटरप्रिटेशन करता है। लेकिन अगर उसको शांत कर दिया जाए तो फिर वो सही सही बताना शुरू कर देता है। ये मेरा ऐसा देखा हुआ है। आप जब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे तो वो लोग सबसे पहले आपको सलाह देते हैं, आपकी बात सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, नो डाउट, उनमें रियल कंपैशन होता है। लेकिन वो आपको जब कंफ्यूज देखते हैं ना, तो वो आपसे भी एक एक्सपेक्टेशन शुरू कर देते हैं कि आप ही को समझना होगा। अरे कैसे समझेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होगा तभी तो डिफॉल्ट सेटिंग काम करेगी और लॉजिकल सेटिंग काम करेगी। यहाँ आदमी रोबोट है, कैसे उसको बदले? उसको कुछ भी बोलेंगे उसके दिमाग में नहीं जाएगा। उसके दिमाग में कोई सजेशन जाए उसके लिए जरूरी है उसका दिमाग का शांत होना। ठीक है, इसीलिए साइको एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। बहुत जल्द नर्वस सिस्टम रेगुलेशन टेक्निक, सॉरी नर्वस सिस्टम रेगुलेशन का भी कोर्स लॉन्च करेंगे। खैर आप लोगों ने तो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन सीख ही लिया, उसका बस जो काउंसलिंग पार्ट है वो आप सीख सकते हैं कि एग्जैक्टली आप कर क्या सकते हो उसमें, ताकि आपको पता हो कि जब आप किसी को काउंसलिंग कर रहे हो, स्ट्रेस एंड एंजाइटी का पेशेंट है, तो उसको एग्जैक्टली आप कर क्या सकते हो। क्या है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कैसे पैदा होता है? जैसे अभी आपने देखा ना, ये सब तो बहुत फाउंडेशनल स्क्रिप्ट्स है, लेकिन जो लंबी स्क्रिप्ट्स है ये एक्सक्लूसिवली उसी के ऊपर काम करे। उसकी सिचुएशन में आप क्या करोगे, है ना? चलिए, अब हम आते हैं ब्रेथ अवेयरनेस के ऊपर। ये एक तकनीक है जिससे हम अपने स्ट्रेस को रेगुलेट कर सकते हैं, इमोशनल बैलेंस अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रेथ अवेयरनेस अगर अपने अंदर होगी तो क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होगा,
पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे आ जाएंगे। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पर आ जाएंगे, और क्या होगा? कोर्टिसोल लेवल कम हो जाएंगे। अरे वही सभी बातें रिपीट कीजिए ना, और बातें बताइए जो पहले बताइए। रिवीजन चल रहा है। ब्रेथ अवेयरनेस माइंड को सेटल करता है। ब्रेथ को सेटल करता है तो माइंड स्टिल होता है, तो फिर बॉडी भी स्टिल हो जाती है। ऐसे कर करके जितने पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं निकालो, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर सभी चीजें तो सुनी सुनाई सी चल रही है। क्योंकि मैंने कहा ना कि हर टॉपिक को बस डिफरेंटली अरेंज कर दिया गया है वही बात, बस डिफरेंटली अरेंज कर दिया गया है। यही तो फायदा होता है इंटीग्रेटेड लर्निंग का। हर एक चीज सेंस बनाएगी और डिफरेंटली सेंस बनाएगी, लेकिन आपको पता पहले से रहेगा। बस कनेक्शन कुछ ऐसे नहीं करके ऐसे भी था, ये अब पता चलेगा। ठीक है। तो आप देखो जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ रहा है आपके लिए मुश्किल कम होता चला जा रहा है। ठीक है। आपको पता है आपको क्या लिखना है इसमें? पता चल गया। थोड़ा एमिगडेला के बारे में लिख देंगे, थोड़ा हिपोकैम्पस के बारे में, जो जो आपको पता वो सब डालते रहेंगे। तो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम हो जाता है, वैसा लिख देंगे। प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स इंप्रूव होता है, एमिगडाला साइज हेल्दी होता है, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल अच्छे होते हैं। ऐसे लिखते चले जाना है जो आपको पता है। जाहिर सी बात है, इमोशनल से इमोशनल बैलेंस आया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, बस। अब बॉडी स्कैन मेडिटेशन पर आते हैं। जब आप योग निद्रा में अपने एक एक बॉडी पार्ट के ऊपर फोकस करते थे तो क्या होता था? सोचिए। मन के कारण शरीर में जो एक तरह से खिंचाव सा महसूस होता है, वो हल्का नहीं हो जाता था? हो जाता था ना। तो जब आप अपनी बॉडी की स्कैनिंग करते हो ड्यूरिंग द मेडिटेशन, व्हाट हैपेंस? एक सिस्टमैटिक अवेयरनेस है, ऐसा नहीं है कि कहीं से रैंडमली शुरू कर दिया हमने, इसका एक सिस्टम है, एक सीक्वेंस है, उसको फॉलो करना होता है। ठीक है। Sir, is the body scanning is we think that each and every part we think, is it that when doing the Yes, in the body scanning, but we start from the right thumb, is it? right hand Yeah. thumb according to yogic scriptures. According to mindfulness, there is a different thing. But we will follow yoga. We will follow yoga nidra. If others say no, no, body scanning is something different, you accept. Okay, yes, it's different. Okay.
आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने जब योग निद्रा की प्रैक्टिस करी तो पता चला हार्ट बीट भी फील होने लगा है, बॉडी में पानी, ब्लड का फ्लो सब फील होने लगा। ऐसा कभी हुआ कि जो जो चीजें फील नहीं होती थी, थोड़ा सा इंटेरोसेप्टिव जो नेचर में होती है, ये होता है बॉडी के अंदर हो रहे सेंसेशंस के बारे में हमें पता होता है, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है आज, मैसेजेस बहुत आ रहे हैं इसलिए। अ, आप में से कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि बॉडी का जो इंटरोसेप्टिव अवेयरनेस है वो योग निद्रा के बाद बहुत डेवलप होता है, स्पेशली व्हेन यू डू इट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। हम्म। हार्ट बीट पता चलने लगा है, ये फॉर श्योर। हम्म। हम्म। और और अभी ज्यादा बहुत कुछ नहीं पता चल रहा है। हम्म, हार्ट बीट पता चलने लगा ना। हम्म। ये हार्ट बीट जो जैसा अवेयरनेस कितने लोगों को होता है? सुरभि जी ठीक है। तो ये जो हम करते हैं, ये हम क्यों कर पाते हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा एक्टिवेट होता है बॉडी में। जब बहुत ज्यादा टेंशन होता है ना तो हम अवेयर नहीं हो पाते बॉडी के अंदर हो रहे सेंसेशंस के प्रति। लेकिन ये जो साइकोसोमैटिक टेंशन यानी मन से हो रहे बॉडी में जो टेंशन जाता है, जैसे साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, पहले प्रॉब्लम माइंड में आया फिर बॉडी में गया। अभी साइंस जानता है साइकोसोमैटिक, आयुर्वेद में 5,000 साल पहले से पता है साइकोसोमैटिक। तो ये जो अवेयरनेस है ये कहाँ से आती है? अंदर की बॉडी की, जब जब हमारा सोमैटिक टेंशन रिलीज होता है, यानी जो फिजिकल बॉडी में जो टेंशन है वो रिलीज होता है, जो माइंड से टेंशन बॉडी में आया जब वो रिलीज होता है तभी तो बॉडी के अंदर हो रही प्रक्रियाएं भी समझ में आती हैं। अब बॉडी ही आपका पूरी तरह से टेंस्ड है, अंदर हो रही घटनाएं कैसे समझ में आएंगी? आएंगी क्या? नहीं आएंगी। निकालिए, पहले मैंने जो पढ़ा है उसमें से क्या क्या डाल सकते हैं इसमें। Sir, which हम्म, about what? मतलब इसकी क्या आप एक तरह से आउटकम क्या क्या निकाल सकते हैं? एक एक आउटकम तो आप ये निकाल सकते हो कि मसल्स में जो टेंशन है वो रिलीज होता है बॉडी स्कैनिंग से। Then और mind, दूसरा क्या निकाल सकते हैं? the mind माइंड becomes. और बॉडी का, माइंड बॉडी आपस में इंटीग्रेट होते हैं, है ना, Hmm. अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। ब्रेथ भी काम मतलब। माइंड बॉडी का होलिस्टिक अवेयरनेस बढ़ता है ना। ये जो स्ट्रेस का एक्यूमुलेशन है बॉडी में वो दूर होता है। खैर ये सब एक ही बात है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब ये हर जगह नहीं लिखना है लेकिन लिख सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ पीएनएस। ब्रेथ भी स्लो काम होती है। हम्म, होती है, लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सब इमोशनल बैलेंस और स्ट्रेस रेगुलेशन टेक्निक्स के अंतर्गत आता है।
याद है मैं अपने सेशंस में हमेशा कहता हूँ कि हमारे अंदर जब रिदम होता है ना तो मेडिटेशन अपने आप आ जाता है। जब हमारे अंदर रिदम होती है तो मेडिटेशन अपने आप आ जाता है। आज सुबह जब मैंने आप लोगों को एम बोलने के लिए कहा था तो आपने देखा कि आप एक बार सांस छोड़ते समय जब एम बोल रहे थे और दोबारा फिर आराम से सांस लिया रिलैक्स होते हुए, और फिर आपने एम बोला, एनर्जी इकट्ठा करी, फिर एम, और मन ही मन वो रिलैक्सेशन को कैसे कैसे बढ़ाता चला गया, क्योंकि उसमें एक रिदम थी। अगर आप एम करते तो नहीं मजा आता। आपने देखा है बहुत लोग बहुत तेजी से ऐसे जप करते हैं, उनको जप नहीं लगता है। जप की संख्या से मैटर नहीं करता, उस वाइब्रेशन का आपके सोल के साथ इंटीग्रेट होना जरूरी है। अब हम मंत्र मेडिटेशन कैसे वर्क करता है, मंत्र मेडिटेशन कैसे वर्क करता है, जैसे हमने सोहम आपको सिखाया। तो सांस लेते समय सो और सांस छोड़ते समय हम, हमने किया। आपको मैं बता दूं, आपके न्यूरॉन्स यानी जो आपके ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स, उनमें जब रिदम क्रिएट होती है बड़ा खूबसूरत सा उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब जिसका, जैसे आपने देखा म्यूजिशियंस बड़े खूबसूरत दिखते हैं, दिखते हैं ना। अरिजीत सिंह को देखिए कितने खूबसूरत दिखते हैं, श्रेया घोषाल को देखिए कितने खूबसूरत दिखते हैं। वो लोग प्रॉपर जिसको कहते हैं सुंदर दिखना वैसे दिखते हैं। सोनू निगम, क्योंकि जब वो स्वर की साधना करते हैं तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में सिंक होने लगता है और एक खूबसूरत स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपस में वैसे ही लिंक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक रिदमिक पैटर्न बन जाता है उनके ब्रेन में। इससे क्या होता है, अब देखिए कहते हैं ना कि जिसका मन रिदम में है उसका अटेंशन बेटर होता है। जिसका मन रिदम में है उसका अटेंशन बेटर होता है। आपके अंदर रिदम ना हो इसलिए तो अटेंशन खराब होता है ना। जिस दिन आपने कोई बहुत अच्छा म्यूजिक सुना उस दिन आप कुछ ध्यान करके देखो, आप अच्छे से ध्यान कर पाओगे। दुख दर्द वाला गाना नहीं, थोड़ा मीनिंगफुल, थोड़ा शांत करने वाला। और ये क्या करता है, ये आपके जो सस्टेन्ड अटेंशन है उसको तो इम्प्रूव करता ही है, फोकस को इम्प्रूव करता है, तो इमोशंस को स्टेबलाइज कर देता है। और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को मजबूत करता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से जो आप ऑपरेट होते रहते हैं उसको रिड्यूस करता है, उस टेंडेंसी को। जब आप सो हम करते हो ना तो जो डिफॉल्ट सेटिंग रहती है आपके अंदर वो कम हो जाती है, फिर आप प्रेजेंट अवेयरनेस में आ जाते हो। ये इसके फायदे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट जगह पर, जहाँ है कि
हम लोगों के लिए लव, काइंडनेस एंड कंपैशन अपने अंदर क्रिएट करें। लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। इसका मतलब ये नहीं कि अपने लिए नहीं हो, सबसे पहले अपने लिए ही होता है। कि मैं दुखी रहूंगा, मैं दो रोटी खाऊंगा लेकिन अपने बच्चों को सब कुछ दूंगा, अरे नहीं बाबू। न्यूट्रिशन का अगर डेफिशिएंसी हो गया तो दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग खराब हो जाएगा तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शुरू हो जाएगा। तो वही इंसान दे सकता है जो अंदर से भरा हुआ है। जो अंदर से नहीं भरा हुआ है वो नहीं दे सकता। महाराणा प्रताप मेरे पड़ोसी के घर में थोड़े ना पैदा होते। उनको पैदा ही होना था उस स्कूल में। श्री रामचंद्र क्यों नहीं पैदा हुए ये बगल में जो मेरे रहते हैं उन लोगों के घर। इनके बच्चे 9वीं कक्षा में भी ABCD लिखना सीख रहे हैं क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है स्मैक फूकने से। वो सॉल्यूशन फूक रहे हैं, स्मैक फूक रहे हैं। आवाज जा रही है ऋषभ आपकी। क्या करूं मैं। मुझे ही दिक्कत हो रही है या बाकी लोगों को भी हो रही है ना? ये आवाज कट रही है। चार्ज करूं तो दिक्कत, चार्ज ना करूं तो दिक्कत। हम्म, टाइम टू चेंज योर लैपटॉप। No, no, I'm not going to change my laptop. I'm going to change my phone. But I love this phone. तो उसके लिए म्यूजियम बना लीजिए फिर। पहले तो मेरा फोन, ऊपर से इंटीरियर। मैं गरीब होने जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लव, काइंडनेस एंड कंपैशन क्यों जरूरी है? मन के कचड़े को खाली करता है। लेकिन सबसे पहले खुद के लिए। ठीक है? क्यों? खुद पे प्यार आता है तभी तो प्यार रिफ्लेक्ट होता है। खुद अगर गुलाब हो तभी तो खुशबू बिखरोगे। खुद सड़ चुके हो तो कैसे सोचोगे आपकी। हाँ। दो आई एम अ रबिश, आई विल स्प्रेड फ्रेग्रेंस लाइक अ रोज। दो आई माई सेल्फ कैरी गार्बेज, but I spread that fragrance of divine aroma. Is it possible? So love, kindness, and compassion for yourself first. And then it will reflect in your very nature. If you love yourself, if you're kind to yourself, maybe people will think that you are selfish. And it's totally fine. You don't need their validation. And it's not arrogance. It's just allowing them and yourself to be yourself, and to be and to allow them to be themselves as they are, allowing everyone to be the way they are. इससे क्या होगा? ब्रेन में जो सेंटर्स हैं, एक सेंटर होता है ब्रेन में, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। उसको लिखिए, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये एम्पैथी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे को समझने की कला। दूसरे को समझना मतलब कोई भी चीज बोलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले हम दूसरे की परिस्थिति को भी देखते हैं, दूसरे की परिस्थिति को भी समझते हैं। ठीक है? ये सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ। एम्पैथी के जो सेंटर्स है ब्रेन में वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और क्या फायदा है?
ऑक्सीटोसिन लेवल्स बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन है। बॉन्डिंग हार्मोन है ना, तो ऑक्सीटोसिन लेवल्स बढ़ते हैं। बट डू नॉट ट्राई इट विद a narcissist. I am not asking you to love yourself, to be kind to yourself, and then to love others and kind to others. Love yourself first. Save yourself first. Do not hate them. Just focus on yourself. And if it requires you to fight, go for it. But Because for that we there have are to limitations. recognize narcissist, right? We have to recognize, but if we love ourselves the way we are, then we don't need anybody's validation. Correct. Do we need anybody's validation if we love ourselves? Just because we don't love ourselves enough, that's why we need others' validation. Increases resilience, emotional resilience, and it improves our relationship. आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ। अ, जो 4 बजे का सेशन होगा उसमें भी मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, तो आपका कुछ छूटने वाला नहीं है। एंड संडे को इस बार जो भी मेडिटेशन आपके छूट गए हैं वो सारे करा दूंगा मैं। रम्या जी एंड एनीबडी हियर इन ऑन दिस ग्रुप, जिनका जो कुछ भी छूटा हुआ है वो मेंशन कर देंगे, और मैं उसको करवा दूंगा संडे के दिन, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला तो डेली चलता है। ठीक है, चलिए, ओके, नमस्ते, हैव अ नाइस डे। Thank you to Okay.